Okay, sure, Yes, sure. good morning to everyone. Welcome in this program. Today's topic are the communication skill, and today's topic objective to improve our communication skills. Okay. And topic is non-verbal communication skill. It's express facial expression and understanding to message. It helps. And I'm Radhika Malviya. So I would like to invite Mr. Rakesh Nikra sir. Okay, thank you, Radhika. Thank you, Dr. Gupta, sir. Okay, now, dear students, all of you are welcome once again here. It's warm welcome. Very good morning to all of you. Am I audible properly Yes, sir. and Yes. visible Yes, properly? sir. Am I visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, right. So let's start. Before starting session, I would like to share one fact how people can mold their career in their life and how they can transform their life. This is a very just 2 minutes fact. Have you heard about the name of Michael Jordan? Anybody? Anyone? Yes or no? No, sir. No. Yes, sir. Who is that Michael Jordan? Basketball player. American businessman. Yes, it is basketball. It is a legend in the basketball, just like Sachin Tendulkar is in the cricket. Same is legend. He's the legend in basketball. So now, what happened in his childhood? When he was a child, he was from very poor family. Some of you maybe also, but it doesn't matter where you are from. It doesn't matter. So he was from very poor family. Once his father called him and said, "Michael, this is one old T-shirt, and you have to sell this T-shirt just only in $2." So he said, "Yes, Papa, I will try." And he went nearby a station and he sold this T-shirt and he came back. Again, his father gave another T-shirt and he said, his father said, "Now you have to sell this T-shirt in $20." Then Michael said, "Yes, Papa, I will try." Then he went again and he cleaned the T-shirt because this is old T-shirt, just like you have old in the storeroom. So he cleaned the T-shirt, he ironed the T-shirt, and he put the Mickey Mouse cartoon over there. Then he went again nearby one school. Once the school was over, some students coming out from the school, and then there was one student. He asked his mother, "Mother, I want this T-shirt at any cost because there's a Mickey Mouse." So mother said, "Okay." So mother paid $25 and he came back. Now his father didn't stop here. His father said, "Michael, here is one more T-shirt for you. And this T-shirt you have to sell into $200." Then Michael said, "Yes, Papa, I will try." Now $200, you can understand the old T-shirt. But he said yes. And he tried to think out of the box. Then he cleaned the T-shirt and he ironed the T-shirt. Then he came to know there was one program in the auditorium in New York. One famous actress Farha used to visit that time. That time, so so he went there nearby the auditorium and he stood up there. As soon as Farha entered there, he was in the gallery, so he followed Farah and he said, "Ma'am, please, I want one autograph, please, ma'am." But because of high tight security, a lady stopped her, and uh, all the security personnel they stopped him, and but still he followed. Michael followed him, and ultimately she stopped and she said, "Okay, let him come." Then security person allowed, and then he said, "Ma'am, please give me one autograph on this T-shirt." And the lady gave one autograph. Then he came outside, and the lady went inside, and there was a program. After the program, when the people came out, the audience came out. So he was selling the T-shirt outside, like the other hawkers. So he was saying, "Okay, this is a T-shirt where you can find the autograph of your famous actress. So if you want to buy this T-shirt, you have to pay the good price for this." So he said, some lot of people came over there.
They said, okay, I'm ready to pay 200. Some said, okay, I'm ready to pay 300, 400, 500, 600, 700. Some, okay, Michael said, whoever, let's have a bid, and whoever pay the maximum, he can take the t-shirt. Then some people say, okay, 1,000, 1,500. And the last bid, that was $2,500. So I think you can understand $2,500 in Indian currency. How much? Could you tell me? If it is 70 rupees dollar. Anyone? Around 1,50,000. Yes, and this is not the story, this is the fact. Okay, so what happened? Now, Michael came out back to his house and he said, Papa, this is the money. You can. So his father said, okay, now what did you get this? What is the lesson you have got from this? So he said, okay, if you think out of the box, if you try your best, you can get whatever you want. So he said, okay, Michael, this is your t-shirt. When the value of the t-shirt can be from $2 to $2,500, then think about your value, your worth. Your worth can be like anything. You are living human being. Yes, he said, yes, Papa, I will prove one day. And you know, the history is there. Michael Jordan proved he is one of the legend in the basketball industry, in the basketball sports. So you can understand this is the value. So, dear students, it doesn't matter where, and he was from very poor family. It doesn't matter where you are from. It doesn't matter what are the resources you have got, what happened in the past. The present whole life is before you. Don't regret what happened. Okay. So that's why I will say you can do the best. Today we are going to discuss something very important, that is your communication. And communication, especially non-verbal. There are two types of communication. One is verbal and another is non-verbal. We sometimes studied verbal communication, like where what is verbal communication? Where we use words. And what is non-verbal communication? Where we don't use words. So non-verbal communication is also very, very important. Sometimes we ignore it, but this is highly powerful. Let us see what is non-verbal communication here. A non-verbal communication, lot of things are here: body language, gesture, posture. Okay, so let us discuss. But first thing, believe you can. You can improve your body language like anything. Okay, so the slide is visible properly to you, all of you. Yes, sir. Okay, Yes, then sir. let us connect from the beginning. Full size slide now. Okay, now this is what is the image you can see. It's what you don't say that counts. Okay, means we don't listen what people don't say. We have to listen what people don't say. For example, the image is here. Okay, the first lady, she is trying to lie, and you can understand from the body language. Okay, this third lady in the image, fourth lady, that is, you can see the images. The body language tells what you try to hide, but you cannot hide anything because body speaks whatever you have hidden. So body language is very powerful. Even I mean, USA, Pentagon is paying millions of dollars to study the body language of Russian President Putin, because we come to know what is hidden there in his mind. So this is so powerful, body language and non-verbal communication. Now let's see more. So business communication, in the business communication also non-verbal and body language is very powerful here. Now let's see here what is non-verbal. Okay, in non-verbal communication, it is included your facial expression, your eye contact, tone of voice, body postures, motions, and positionings within the groups. It may be also include the way we wear our clothes, the silence we keep. So we don't care sometimes all these things: the dress, what we wear, the way we talk, the tone, the voice. Okay, and every images here, we are having a lot of images because we are talking body language. We are talking non-verbal. So verbal we will use less. We will use more and more images here because it is non-verbal communication, right? So
every image, every your gesture, posture has some meaning, and you have to be very careful while you are using your body language, your gesture, your posture, whatever. Now let's see here. Have you ever heard your accent? Your accent spoke so loudly I couldn't hear what he said, but I can listen what your body says. This is one another Excuse me, sir. communication. Yes, एक्सक्यूज मी please. सर, Yes. आपका स्क्रीन शेयर शायद स्टॉप हो गया है, एक ही उस पे स्टिक हो गया है, बिलीव यू कैन वाली स्लाइड पे. Okay. Is it okay now? Is it okay? नो सर, सर इसको नो सर, अभी भी. क्या हम मैंने पिन किया है इस स्क्रीन को. शिवानी वो सब स्टूडेंट को पिन करना पड़ेगा एक्चुअली. एंड निकरा सर इसको मैक्सिमाइज करिए ना आप. इस मैक्सिमाइज हो गया सर, वो मैंने फुल स्क्रीन कर दिया है. अच्छा ओके. तो ये स्टूडेंट्स को दिख रहा है लैपटॉप पे, जिनको वहां दिख रहा है, बट ये पिन सबको करना पड़ेगा अपने अपने स्क्रीन पे जाके, है ना. यस निकरा सर काइंडली. ओके 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 श्योर. हिंदी के साथ भी रहेगा तो शायद बच्चों के लिए और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा. ओके, आई डिड फुल स्क्रीन फ्रॉम माय साइड. या ओके ओके सर प्लीज कंटिन्यू. और हिंदी का भी उपयोग कर सकते हैं सर, कोई. अच्छा श्योर 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 सर. अच्छा, एक फिर से मैं कर देता हूँ फुल साइज, शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से कर देता हूँ. सर Okay, एक रिक्वेस्ट था कि एक बार स्क्रीन शेयरिंग हटा के फिर हाँ, से हाँ. स्क्रीन तो हो सकता है उससे आ जाए. ओके ओके श्योर श्योर श्योर. सर दिख रहा है. दिख रहा है, फुल स्क्रीन दिख रहा है. यस सर. यस सर. मैंने फुल स्क्रीन फिर से कर देता हूँ मैं. Is it okay now? Yes. Full screen is Yes, there? Okay, this is my. Okay, right. Okay. Your accents are speak. Your accents are louder than what you say. Okay. Now there is also a lot of types, many types of communication. For example, aesthetic communication. Aesthetic communication. This is the communication where we use, especially in the art and literature. Sometimes when we are singing, some people are dancing. That time, that is the communication. Whatever we have. Non-verbal communication, that is called aesthetic communication. This is very important term, though I think this is advanced term, but still you must know, because other people, they don't know what is aesthetic non-verbal communication. So when there's art, literature, when dance is there, this is aesthetic. Now there's science also, body language, we have different sign. This is non-verbal communication. Now you see here non-verbal, physical aspect of non-verbal. So we are going to discuss here a lot of topics in non-verbal communication, like kinesics, proxemics, haptics, oculics, chronomics, okay, pocketic, then sound symbols, silence, postures, adornment, and locomotion. So lot of things, because this is highly useful in your day-to-day communication. For example, proxemics. Nowadays, we are using these terms highly during the COVID-19, and we will discuss it. What is this proxemics? Now, let's see here, this facial expression. As I told you, there are a lot of images because this is non-verbal communication. So, non-verbal communication, we learn more from our non-verbal communication, right? I think I will say even non-verbal communication will be more powerful than verbal communication. Why? Because in non-verbal communication, you cannot hide anything, but verbal communication, you can hide something, whatever you want to say. So facial expression, they reveal what you have hidden in your mind. So face is the index of mind. That is why we say, okay. Now let's see here, the eyes, there is importance of eyes here. Right. The importance in public speaking also, when you don't have eye contact, your presentation, you cannot have better presentation. But if you have better eye contact with your audience or whoever you are talking, whether there are 2 person or 4 person or a group or even 100 people, if you have better eye contact, your presentation, people will listen to you. Because, okay, now, even if you don't connect with all the audience, you must look towards their forehead. Forehead, you understand? Forehead समझते हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ये जो उंगली से दिखा रही है ये लेडी, वो that is forehead. Okay. अब इसमें gesture और posture क्या होता है? कोई
you know what is gesture and posture? Anybody? Yes, sir. Sir, facial expressions are called gestures and body language is Yes. our body movement and all. Yeah. So your gesture, generally your facial expression, okay, eye to eye contact, smile, whatever it is, and posture, the way you are moving your hands, hand movement, the way you are standing, the way you walk. Another way of walking is called gait, Gait. The way you walk, that is also very important, especially during the interview. The way you walk, and the term is gait. Okay, in the non-verbal communication, if you have decent walk, the interviewer will understand that yes, this is the lady, this is the girl, this is a decent girl. Okay, so you must have your posture, that makes a difference during interview, even when you walk from your entrance to the chair. So the 50% means the selection is there. You can, from your non-verbal communication, the interviewer decide whether the person is deserving or not. So this is very important, your gesture and posture. Now, there was one famous person, researcher, we can say. The name is Albert Mehrabian. He said that in our whole communication, whatever we have communication, in altogether we have 7% only vocabulary words. That is the importance, and the importance of tone, that is 38%, including tone, inflection, and other sounds. 38%, and 55% is our non-verbal. You understand? 55%. How much? 55% non-verbal and tone. And words are merely 7%. So even some people, they don't speak lot, but you understand this person is really having some, energy, confidence, or even, for example, army personnel, if it is sitting in nearby in the train with you, then you can understand this person is somewhat different. Now let's see here. This is the image here. You can see in overall communication. निखरा सर, एक्सक्यूज मी वंस अगेन. हाँ जी सर. पीपीटी आपका आगे मूव नहीं हो रहा है, स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही हैं, हमें दिख नहीं रही हैं, आपके इधर हो रही हैं. अच्छा. हाँ, तो आपको शेयर स्क्रीन रोक कर एक फिर बार से मैं कनेक्ट कर देता हूँ. और शेयर स्क्रीन करके जो पहला ऑप्शन आता है ना, हाँ जी, हाँ जी. शेयर इंटायर स्क्रीन. ठीक है, उसको कर देता हूँ मैं. ओके सर, श्योर. एक बार जैसे आप शेयर प्रेजेंट नाउ पे जाएंगे ना, तो योर इंटायर स्क्रीन का जो आएगा ना सर, वो करिएगा, और उसमें आप स्क्रीन पे अपना पीपीटी चला देंगे तो आपको पूरा का पूरा हमें दिखाई देगा सर. अभी स्लाइड श्योर आई फिर से कर देता हूँ सर मैं. यस सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट वो sorry student for it, distraction, but just it will take hardly 30 seconds to me to connect again. Okay, just a minute. Now I think it is connected. Just a minute sir, it may take a little bit time. Yes, it is started sharing, and yes, now please आप इस पर, I think students एक दो feedback दे दीजिए. शिवानी, अब slide change हो रही है. Yes sir. Slide change करिए एक दो. Yes, carry on sir, carry Yes, on. sir, it is visible. Yes sir, carry on. Yes sir. Okay, now so we are Yes, here discussing what is communication here. So when we see overall communication, so overall communication, we have only 7% words. Vocabulary is only 7%, altogether. And 55% is our body language. And, very important one part is also that is your tone of voice. The way you are speaking, the tone, the vocal cord that we use. That's why, Lata Mangeshkar, when she sings, she gets millions. And if I sing, I started singing, maybe you leave out, So this is the role of your tone. Tone is very powerful. And one more congratulations to all the girls here, because you are from Women Polytechnic College. So girls, this is a research that girls has a better tone in comparison to male, or female people, means females are having better tone of voice than male. This is research, and that is the reason all of the airport, most of the air hostess, they are from the means they are ladies, and all the reception all across the world, most of the receptionists, they are ladies or girls.
What is the reason? Because of the tone. They have very soft spoken. Their tone is comparatively better than boys. Okay, the male person. So this is a compliment to girls. Okay, so you can pat your back. आप अपने आप को congratulate कर सकते हैं. Am I right? Are you getting me? मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? जो गर्ल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्स है सभी के लिए गर्ल्स, आप चूंकि गर्ल्स कॉलेज से हैं और आपके साथ इतने अच्छे विनोद गुप्ता जी, डॉक्टर विनोद गुप्ता जी जो खुद बहुत बड़े एंकर हैं और बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, तो आप लोगों का करियर एक अच्छे हाथों में है. आई एम श्योर दैट यू कैन गेट बेटर जॉब. एनीवे, सो इसको आप प्लीज, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, यूज इट, यूज योर, प्ले विद योर स्ट्रेंथ. जो आपकी स्ट्रेंथ है, डोंट फोकस योर वीकनेस, strengthen your strength. Okay, and if you have weakness, weaken your weakness. So this is your tone, this is your strength, right? Now you can see here what is here in when we are talking about here. So in this 7% words, and this tone is here. In the tone, voice is there, vocal clarity and expressiveness. Okay, and here facial expression, dress, posture, eye contact, touch, gesture. I will discuss about the touch and eye contact also, gesture, posture in the coming slide. I have a lot of slides. The reason is that I told you, because this is non-verbal. Non-verbal means we will less means we will focus more on the images, because this is non-verbal, right? Now you can see here the way interpretation. For example, if you are walking, so if it is brisk walk, you understand, brisk walk, when we are walking like a soldier after taking a meal, okay, it is a confidence. You mean you have confidence like a soldier. Okay, standing with hands on hips, readiness means there are lot of things are there. When you have crossed arms, it means you are defending yourself. So every gesture, every posture, the way you are sitting, the way you are walking, the way you are standing, everything has some meaning. The way, and the people, those who knows non-verbal, they can understand you, whether you are feeling dejection or defensiveness or open, you are relaxed or you are boredom. आप कैसे हैं, आप कॉन्फिडेंस हैं या नहीं. आप अंदर से भले ही आप कुछ भी कहें कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन आपकी बॉडी बोलती है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, राइट? बिकॉज द वे यू आर स्टैंडिंग, जैसे आप खड़े हुए हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, उससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंस है इस समय की नहीं है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? मूव ऑन टू हियर. देयर इज हैंड टू चीक, means you are thinking something. जैसे आप जो cheek, you understand? Yes, sir. Okay, right. So when you have hand on cheek, it means you are thinking. आप सोच रहे हैं उस पर, या आप evaluate कर रहे हैं किसी को. Okay, when you are rubbing your nose, इसका मतलब है आप अपने आप पर डाउट कर रहे हैं या आप रिजेक्शन फील कर रहे हैं. Rubbing the eyes, तब आपको डाउट हो रहा है आपके ऊपर या किसी पर, तो डिसबिलीफ है यहाँ पर, है ना? इस तरह से हर एक चीज का अपना अपना एक सिग्नल है ना? और आप उसको, बहुत सारी इमेजेस अभी आने वाली हैं, चूंकि इसके बाद देखेंगे आप ये इस तरह की इमेज. आप जब हाथ आप ऐसे करते हैं तो व्हाट डज इट मीन? लेट मी सी. इट्स, है ना, अथॉरिटेटिव पॉन्डरिंग. आप उस समय सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं किसी को, है ना? ये इमेज जब आप हाथ की करते हैं कभी प्रेजेंटेशन के समय, so this means that. And sometimes what does it mean? Can I help you? Trust me, you are good hands. Okay, helping hand. This is the image like that. Now this is very important term. What in nowadays COVID-19 एक बहुत अच्छा टर्म्स आया है, सोशल डिस्टेंसिंग. ठीक है ना? तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे? यस, एनीबॉडी? सोशल डिस्टेंसिंग. एक बार मैं कॉलोनी में घूम रहा था, हमारी यहाँ पर मिनाल के पास में, तो बहुत सारे लोग, कुछ सीनियर सिटीजन्स जा रहे थे, तो बोले ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बोलते हैं भाई? हमको समाज से दूर थोड़ी रहना है, हमको फोन से दूर या व्हाट्सएप मीडिया से दूर थोड़ी रहना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बोलते हैं इसको? एनीबॉडी? सर मेंटेनिंग डिस्टेंसिंग. यस सर, मेंटेनिंग डिस्टेंस. तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है? So physical distancing is between people, strangers and people in the society. ओके, तो एक टर्म होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं नॉन वर्बल में,
तो हम कितनी दूरी से किससे बात करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये हम अगली स्लाइड में यही बात करने वाले हैं। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है ये देखिए आप। सोशल डिस्टेंसिंग जब हम किसी से बात करते हैं तो उस समय जो है 6 फीट की दूरी होती है या 2 मीटर की दूरी होती है, डेट इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। और सारे इसकी डेफिनेशन है। देखिए जब हम बात करते समय जब हम हमारी दूरी दूसरों से 2 फुट के अंदर होती है, जैसे आप अपनी मम्मी से बात करते हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है ना, या कोई भी चीज ऐसी होती है जो आपकी इंटीमेट मीन्स वेरी क्लोज, मे बी योर मदर, मे बी योर फादर, मे बी योर ब्रदर सिस्टर्स और यंगर सिबलिंग्स, ओके, संबंध, तो जो भी इंटीमेट है तो उससे आपकी डिस्टेंस बहुत इंटीमेट रहती है। मे बी आप बच्चा माँ की गोद में बैठा हो, ठीक है ना, तो वो दैट इज एक्चुअली दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। ये डिस्टेंस कैसे मेंटेन होती है जब हम बात करते हैं, तो बहुत इंटीमेट रिलेशन में हमारी डिस्टेंस ना के बराबर, यानी कुछ भी ना हो और 2 फीट से कम होती है। मतलब या तो आप बच्चे की गोद में बैठा है, कई बार पास में खड़ा हुआ है ना, तो उसमें डिस्टेंस मायने नहीं रखती है। तो इट इज इंटीमेट, सो दिस इज लेस देन 2 फीट। 2 फीट से ज्यादा होती ही नहीं है, कभी कभी तो बिल्कुल जीरो डिस्टेंसिंग होती है, बिकॉज द बेबी इज इन मदर्स लैप, बच्चा माँ की गोद में रहता है। तो ये इंटीमेट रिलेशन में होता है। या फिर आप पापा के साथ है, मम्मा के साथ है, या दो ब्रदर, योर ओन ब्रदर्स, सो यू आर शेयरिंग इवन बेड, दो सिबलिंग्स, दो भाई, है ना, तो दैट इज वेरी इंटीमेट रिलेशन। नाउ पर्सनल, पर्सनल मीन्स जब आप खड़े हुए हैं कहीं पर और मार्केट में खड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे, जनरली आप मेंटेन करेंगे दूसरों से 2 से 4 फीट की दूरी, ठीक है ना, दैट इज योर कंफर्ट जोन। कोई उसमें आता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, यू बिकम्स अनकंफर्टेबल, देन दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग में 4 फीट से लेके 12 फीट तक की दूरी होती है, मतलब 2 मीटर तक की दूरी हो सकती है। और ये सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 में मेंटेन करना बहुत जरूरी है अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। तो वो मैंने फिर उनको, जो कार पार्क में घूम रहे थे, फिर मैंने उनको बताया। अभी आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद पीपल दे कैन नॉट डिफाइन व्हाई वी कॉल इट सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज दिस इज कॉल्ड इंटीमेट distancing, this is personal distancing, this is social distancing, and this is next one is public distancing, when your distance from the public is more than 12 feet. For example, जब आप मंच से आप एड्रेस कर रहे हैं लोगों से, तो कई बार आपके और पब्लिक की दूरी कम से कम 12-12 फीट होती है, ठीक है ना। ऑडिटोरियम में आप बैठे हुए हैं तो मंच से आप संचालन कर रहे हैं, जैसे विनोद सर कभी बहुत सारे संचालन करते हैं मंच से, ये ही इज द बेस्ट एंकर इन भोपाल। तो इनका संचालन देख के तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कभी इनका संचालन जितना देखने को मिले बहुत अच्छा रहेगा। तो उस समय जब संचालन करते हैं सर, तो उसमें कम से कम डिस्टेंस जो है 12 फीट तक की हो जाती है ना, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्टेंस। ओके, यू कैन सी हियर आल्सो public space, social space and personal space. So this is also part of non-verbal communication. अगर आप ज्यादा क्लोज होके बात करेंगे, मान लीजिए 2-4 दोस्त खड़े हुए हैं, तो आपको अपने आप को प्लेस ऐसा करना है कि मेरी बात ठीक से सुनी जाए, मेरी आई कांटेक्ट ठीक से हो। इंटरव्यू में भी आप इस 4 चेयर डली हुई हैं और सामने बैठना है आपको, तो आप अपने उस हिसाब से बैठे जहां से आपकी डिस्टेंस प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर आई कांटेक्ट हो सके बोर्ड मेंबर्स के साथ। तो डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। इसके बाद आप देखिए यहाँ इमेज पे, यूएस में भी इसको फॉलो किया जाता है और ये इस तरह से मेंटेन होता है, ठीक है ना। Yes, this is the guidelines and protocols, you know, in the administration, चाहे वो यूएस का हो चाहे गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। जब खासतौर से डिग्निटरीज आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तब ये चीजें बहुत मायने रखी जाती हैं कि कितने डिस्टेंस से कैसे बात करना है किससे, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी पावरफुल। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right, Yes, sir. right. Okay, now move on to the next here. अब आप देखते हैं आपका इवन आप कैसे खड़े होते हैं, कैसे आपके चलते हैं, उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आपका पोस्चर ठीक है नहीं है। तो द वे फर्स्ट इमेज इट इज नॉट गुड पोस्चर, सेकंड इमेज इज द बेस्ट पोस्चर, ओके, द बैलेंस्ड अपराइट पोस्चर। ओके, तो आप जब बात करते हैं, चलते हैं, तो इसमें कॉन्फिडेंस भी लगता है ना। तो प्लीज अपनी बॉडी को, पोस्चर को ठीक करिए, है ना। ये इंटरव्यू के समय बहुत जबरदस्त काम आता है, आपसे कॉन्फिडेंस भी पता चलता है कि बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। नाउ लेट्स हियर इवन द इमेजेस योर फिंगर्स, दैट इज कॉल्ड जेस्चर। ओके, सो
सो इसके जो है आपके हैंड मूवमेंट से पता चल जाता है कि क्या आप, ये साइन है, फॉर एग्जाम्पल विक्ट्री का साइन है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू कॉल समबडी, राइट, कॉल, यू वांट टू गो समवेयर, तो ये बॉडी लैंग्वेज के साइन है. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू say this is the best, so you can say thumbs up, okay, right, victory, call, drag, okay. So this is what normal symbols are there. Now there are some images here, you can find out उस इमेज का मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका. फॉर एग्जाम्पल इस इमेज से आप कहेंगे जस्ट स्टॉप दैट, गेट आउट हियर, डिफेंसिव, ही इज फीलिंग डिफेंसिव, ओके. नाउ हियर क्या इमेज क्या बताती है ये, हर एक इमेज का अलग मतलब होता है, मैंने आपसे बोला. तो ये इमेज क्या कहती है? यस प्लीज. So tell me more. Yeah, it is open, relax, okay. It is open means accommodating. This lady is accommodating, मतलब दूसरों को सुन सकती है, बोल सकती है. Tell me more, okay, right. It is So sadness. Expression with sadness. confidence building, expression and gesture, awareness of non-verbal. Yes, she's feeling unhappiness. She's okay. Here somebody is having doubt, this negative emotions. Negative emotions here. Minimal, okay. Here you can say gesture. When the raise is handing, common gesture. So it means readiness. Now this is very important, dear students, to all of you. This is called ergonomics. Ergonomics means the how you manage your means space. Whenever, for example, your study room is there, so how you manage your books, how you manage your chair, how you manage your laptop, desktop, how you manage your chair, the angle. This is highly important because you know आज लोगों का posture गलत हो गया है और इसके वजह से बहुत सारे सर्वाइकल डिजीज होते हैं. यू अंडरस्टैंड? सर्वाइकल, किसी की नर्व्स जो है ब्लॉक हो जाती है, किसी का हाथ उठता नहीं है पूरा, किसी के साथ गर्दन में दर्द हो जाता है शुरू. तो ये अगर ये होता है केवल बुरे पोस्चर, और ये जो हम हमारी जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, हम कभी कभी झुककर बैठते हैं, लेटकर पढ़ते हैं, तो दिस इज एक्चुअली राइट पोस्चर, डियर स्टूडेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. और इससे क्या होता है, एनर्जी फ्लो रहता है, हमको आलस भी नहीं आता. नहीं तो हम बेड पे पड़े कई लोग लेटे लेटे पढ़ते हैं, सो समटाइम्स दे स्लीप. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ergonomics कहलाता है, ये है ना. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. टाइम हमारे पास बहुत कम है, नहीं तो मैं सारी चीजों को और डिटेल्स में बताता, है ना. और बहुत सारी चीजें, ये नॉन वर्बल का पार्ट है ergonomics. द स्पेस इन योर रूम और इन द ऑफिस दैट यू मैनेज, right, the table, the chair, the desktop, the laptop, or the whatever the books are available, okay, how do you manage? Okay, nervousness. Yes, sometimes people bite nail, you know, बहुत सारे लोग नाखून काटते रहते हैं, चबाते रहते हैं, आपने देखा होगा क्लास में. इसका मतलब है they are also nervous, okay. Now boredom, impatience, जब आप घड़ी की तरफ देखते लगते हैं ऑफिस में कई बार, बार, तो इसका मतलब है यू आर फीलिंग बोर. Okay. Now haptics, this is very important. What is haptics? Do you know anybody? Haptics. Yes, the language of touch. Yes, very good, excellent answer. Who is this? So Shivani. Shivani, thank you so much. Haptics, you know, जब स्वामी विवेकानंद को कोई गुरु नहीं मिल रहा था तो बहुत उन्होंने सर्च की, और फिर आखिर में वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते हैं, और रामकृष्ण परमहंस अपना हाथ रख देते हैं उन पे, सर पे. तो स्वामी विवेकानंद एकदम दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, और उनको लगता है कि या आई वाज सर्चिंग दैट, उनको सारी जैसे ब्रह्मांड घूम गया हो उनका. तब उनको लगता है कि यस, तो वो एक टच है ना. तो उनको लगा कि हाँ, ये नहीं गुरु की मुझे तलाश थी, फिर उन्होंने उनको गुरु मान लिया, और ये सारी चीजें हैं. और टच में आप देखते हैं कोई बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है ना, और जैसे ही मम्मा आती है उसको टच कर देती है पीछे से, भले ही आंख भी बंद हो, तो बच्चा समझ जाता है सी इज माय मदर, और उसका रोना बंद हो जाता है. एम आई राइट? Yes, sir. तो ये है पावर ऑफ टच. और लेकिन गर्ल्स, आप लोगों के लिए भी एक, और बच्चों के लिए भी एक चीज और समझना है, देयर इज आल्सो टर्म गुड टच एंड बैड टच, है ना. आपको समझना चाहिए कि कोई हमको क्यों टच कर रहा है, क्यों. मे बी देयर आर डिफरेंट रीजन. तो कुछ टच होते हैं जैसे प्रोफेशनल होता है,
फंक्शनल होता है, सोशल होता है, फ्रेंडशिप होता है, लव इंटीमेसी होता है ना. समटाइम्स इट इज रॉन्ग मैनर ऑल्सो, बैड टच. So bad touch may be other reasons. Okay, so social, polite, so functional, professional. Professional जैसे आप मिलते हैं किसी से तो हैंडशेक करते हैं, ठीक है ना. तो हैंडशेक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि आप सोच भी नहीं सकते उसको. जैसे भी हैंडशेक, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे रशिया का, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब जाता है और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट दोनों हाथ मिलाते हैं, तो उस पर पूरी वर्ल्ड मीडिया फोकस रहती है कि किस तरह से हाथ मिलाते हैं. उससे पता चल जाता है कि किसकी बॉडी लैंग्वेज, किसमें कितना कॉन्फिडेंस है ना, कौन डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर. ठीक है, ये हैंडशेक अगर आपकी लाइव क्लास होती तो मैं आपको बताता इसमें आपको कैसे हैंडशेक करना है. और एक हैंडशेक में जो लड़के लड़कियां अक्सर गलती करते हैं वो है कि हैंडशेक, मान लीजिए एक लड़का और लड़की हैंडशेक कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कैन यू टेल मी. मान लीजिए आप कॉलेज में जाते हैं या कहीं पे बाहर खड़े हुए, एक आपका दोस्त है और कोई भी एक्स वाई जेड, तो आप जनरली, वी आर सोशल पीपल, सो समटाइम्स यू हैव इवन फ्रेंड्स, मे बी बॉयज हैव गर्ल्स, गर्ल्स हैव बॉयज, इट इज नॉट ए डिफरेंट पर्पज, है ना. एक हेल्दी रीजन से भी हो सकते हैं ना. तो उसमें कैसे हैंडशेक करना चाहिए. एक प्रोफेशनल हैंडशेक भी होता है ना, कई बार आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो गर्ल्स भी गर्ल्स भी कोई एम्प्लॉइज है, बॉयज भी है, तो कैसे हैंडशेक करना चाहिए. बॉयज आएगा, हाँ कभी कभी क्या होता है बॉयज हैंडशेक करते हैं, है ना. तो बॉयज हैंडशेक करता है, दैट इज वेरी अगेंस्ट द एटिकेट्स. तो सबसे पहले क्लास लाइव होती है, हम लोग बड़ा इसको एंजॉय करते हैं क्लास में. हम लोग जब अपने कॉलेजेस में क्लास में करवाते हैं बच्चे, तो जनरली क्या करते हैं, बच्चे आगे जाते हैं और अपना हाथ बढ़ा देते हैं. इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बॉयज, अगर गर्ल्स आपको लगता है कि हम इसको हैंडशेक करना है तो आप, यू हैव टू एक्सटेंड योर हैंड, दैट इज द एटिकेट्स, है ना. गर्ल्स, अगर बॉयज करता है दैट इज अगेंस्ट द एटिकेट. ओके, तो सोशल पोलाइटनेस, ये सभी जगह पे, फ्रेंडशिप में ये आपका हैप्टिक्स का यूज होता है. लव इंटीमेसी, मदर बिटवीन चाइल्ड भी हो सकता है ना. तो ये डिफरेंट सिचुएशन में, अभी हैप्टिक्स को और देखेंगे. यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर हैंडशेक है ये, ठीक है ना. राइट, व्हेन यू हैंडशेक योर आई कांटेक्ट मस्ट बी देयर टू द पर्सन. ऐसा नहीं कि आप अपनी आंखें नीचे कर रहे हैं और हैंडशेक उससे कर रहे हैं और ऐसा पता चला उसका हाथ ही मसल दिया आपने. एक प्रॉपर हैंडशेक ओनली फॉर 10 सेकंड्स, दैट्स ऑल. राइट, ये प्रोफेशनल हैंडशेक होता है. इट इज कॉल्ड हैप्टिक्स आल्सो, क्योंकि बॉडी टच हो रही है आपकी, यहाँ पे बॉडी टच है ये. राइट, दिस इज आल्सो सेंस ऑफ बॉन्डिंग. जब बच्चों के साथ माँ या कोई टीचर टच करती है, खेलते हैं, तो बॉडी टच में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है उसमें. तो ये टच बहुत पावरफुल होता है. बच्चे कॉन्फिडेंस फील करते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बच्चे और टीचर, बच्चे और किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ इसमें, है ना, वेदर दे आर योर अंकल और आंट और एनीबॉडी. ओके, राइट. अब बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे हैं, इसमें आपको समझ सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज से ये लेडी जो है डिसगस्टेड है या डिसलाइक करती है किसी को. तो इसके बाद योर फेस वॉस्ट वेन एवर यू स्पीक, ऑफन द की. जब आप साइलेंट भी रहते हैं तो साइलेंस भी एक बहुत पावरफुल एक कम्युनिकेशन हो सकती है. एक नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. ठीक है, नेगेटिव इस सेंस में हो सकती है कि मान लीजिए कोई चीज फैकल्टी आपसे बार बार पूछ रही है और आप आंसर नहीं दे रहे हैं, दैट इज नेगेटिव. बट साइलेंस कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव, है ना. जैसे मान लीजिए किसी का कंडोलेंस है, वहां पर आप बड़बड़ बड़बड़ बात करते रहते हैं लोग, तो वहां पर शांत ही रहे तो ज्यादा अच्छा है. या फिर कहीं पर और भी, व्हेन यू थिंक समथिंग, अपने घर में भी बैठे हैं, कई बार आप, इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स इन साइलेंस, योर ब्रेन विल रिफ्रेश, है ना. तो ये साइलेंस भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन है. आई कांटेक्ट का पहले भी मैंने डिस्कस किया है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर. इट इज वेरी पावरफुल टूल व्हेन यू हैव कनेक्ट विद द आईज. उसमें आपका पूरा अटेंशन होता है. जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या चीज है, अटेंशन. एंड किसी चीज को आप, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर अटेंशन, देयर शुड बी कनेक्ट अटेंशन. ठीक है ना, अटेंशन, रिटेंशन. एंड दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबॉडी. सबसे बड़ी गिफ्ट है अगर आप किसी को दे सकते हैं कि आप किसी को ध्यान से सुने, और ध्यान से सुनेंगे तो आई कांटेक्ट भी रहेगा. हैंडशेक भी कहा, मैंने आपसे कहा था हैंडशेक भी करते हैं तो उस समय आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर रहेगा. अब आप देखिए, डिफरेंट आई कांटेक्ट और डिफरेंट, उससे कई बार आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सिक्योरिटी पर्सनल आपको जज कर लेते हैं, ये जो बंदा है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये बंदा है, ये ट्रस्टवर्दी है, ये न्यूट्रल है. तो खाली आपके पासपोर्ट को देख आप जाएंगे जब एयरपोर्ट पे,
तो आपका पासपोर्ट देखने के साथ साथ वो ऑब्जर्व करेगा आपको, और आपकी जो चिन है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपके जो चीक्स है, आपके जो फोरहेड है, उसको देख के वो आपको वो समझ जाता है। आपके एयरपोर्ट पे बैठे ऑफिशियल्स होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बस ये कोई जो क्रिमिनल है, क्योंकि उसके चेहरे से, उसके हाव-भाव से पता चल जाता है। इसलिए जो है फेशियल एक्सप्रेशन बहुत पावरफुल होते हैं आपके, ठीक है ना। कुछ लोग भी आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। वो इसलिए अवॉइड करते हैं कि या तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या वो उस समय उनका माइंड जो है टेंशन में होता है, या फिर उसमें वो और अदर रीजंस हो सकते हैं, तो उस समय वो दे अवॉइड टू हैव आई कांटेक्ट, ठीक है ना। अभी आप देखिए कितना पावरफुल होता है बॉन्डिंग व्हेन यू हैव आई कांटेक्ट। अब इसमें आई कांटेक्ट ना हो तो कैसे लगेगा आपको, तो इतना बॉन्डिंग अच्छा पावरफुल नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, एक मैसेज आता है सिंसियरिटी का, ठीक है ना। अब आप देखिए स्माइलिंग ऑल्सो, इट इज अ पावरफुल बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली। ए कर्व कैन स्ट्रेट मिलियंस पीपल, यू अंडरस्टैंड। ए कर्व मतलब जो स्माइल से आपका कर्व बनता है चेहरे पे, वो मिलियंस लोगों को सीधा कर सकता है। मींस दे कैन बी कनेक्टेड, दे कैन स्माइल। जैसे आप कितने भी नर्वस बैठे हुए हैं, एक बच्चा, एक लड़की, छोटी सी बेबी गर्ल आती है, वो स्माइल करती है, और आप बड़े उदास बैठे हैं, तो क्या होगा, क्या होगा? सर हम भी स्माइल करेंगे, करने लगेंगे। स्माइल करेंगे, तो ये देख, Smile. हाँ जी आप भी स्माइल करेंगे। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। इफ यू चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन, इफ यू चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर मूड विल चेंज। जब आप अपने, जैसे आप उदास हैं, उदास की जगह पे आप मुस्कुराने लगे बच्ची को देख के, तो क्या होगा, आपका मूड चेंज हो जाएगा। अब यू विल फील हैप्पी, आपके ब्रेन से वो जो जो एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रिएट होने लगते हैं, तो आप खुश हो जाएंगे। और इसका अपोजिट भी है, जब आप खुश हैं और आपने अपना चेहरा जो है फ्राउनिंग बना लिया, तो आपको नेगेटिव इमोशंस हो जाएंगे, आप दुखी भी हो जाएंगे। तो योर राइट, तो योर फेशियल एक्सप्रेशन इज वेरी पावरफुल। वो आपका खुद का मूड भी डिटरमाइन करते हैं, है ना, राइट। और राइट, ये इट मीन्स यू आर इंडिकेटिंग दैट यस, योर क्लेंस्ड हैंड इंडिकेटिंग दैट यू आर इन प्रेशर, ओके, इन डिफिकल्ट पोजीशन। नाउ हियर ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी को बता रहा है। जैसे जो बॉस है, होल्डिंग हैंड, बैक में अपने हैंड्स को ज्वाइन किया है, इट शोज दैट ही इज ट्राइंग टू हैव सुपीरियरिटी, ठीक है ना। ये डाउट पैदा कर रहा है, मैंने आपको बताया था, व्हेन यू आर रबिंग योर, ओके, leaning back with both hands supporting the heads usually indicates a feeling of confidence, superiority, okay। बहुत सारी इमेजेस हैं, टाइम बहुत कम है। क्रॉस्ड लेग्स, ये कई बार हम लोग इंटरव्यू में वैसे खड़े हो जाते हैं कहीं पर, so this is, what is this? Defensiveness. It shows your defensiveness, you are not confident enough, okay। Now here arms open, it's generally indicate openness, you want to accept somebody, you are accommodating someone, okay। Now a lot of images are here, time is very less here. Now here एक लास्ट में मैंने जिसकी बात की थी, माइकल जॉर्डन, यू हैव माइकल जॉर्डन, और उसने कहा है, आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माय लाइफ एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीडेड। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स कि आप लाइफ में आप कितनी बार फेल हुए हैं, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम आगे के रास्ता कैसे, इफ यू लुक बैकवर्ड यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो आपको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, और उसमें खासतौर से टाइम अभी बहुत कम है। मैं बहुत सारी लाइव क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ, और एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो बच्चों को और समझ में आ जाता है कि बच्चों को एक्चुअली में ये क्या चीज पावरफुल है और क्यों पावरफुल है, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप शायद मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाता हूँ आज, ठीक है। आर यू रेडी, ठीक है ना? यस, Yes. Yes, sir. ऑल ऑफ यू, यू कैन सी मी, यस सर। Yes, sir. ओके। तो एक एक्सरसाइज से आपको पता चलेगा कि आपकी जो है नॉन वर्बल ज्यादा ताकतवर है या वर्बल ताकतवर है, ठीक है। हम आज उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स फील करिए, छोड़ दीजिए खुला, है ना, ताकि आपको ये सेकंड्स में करना है, सेकंड्स में, ठीक है। माइकल, ये नो आपको कुछ जो इवेंट्स होती हैं वो सेकंड से ही विक्ट्री होती है उनकी। जैसे माइकल फेल्प की जो जीत हुई थी वो 1/100 सेकंड से हुई थी, लास्ट जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये सेकंड्स में ही करना आपको, नैनो सेकंड में, ओके। आर यू रेडी? हाथ ऊपर नीचे कर लीजिए ताकि हाथ आपका बहुत फास्ट जाए, ओके, राइट, ओके, यस,
Ready? Yes. 1, 2, 3. Yes. Ready? Yes, sir. Yes, 1, sir. Yes, sir. 2, 3. Touch your nose Yes, fast. sir. Touch your nose fast. क्या किया आपने? No, क्या किया? sir. क्या किया? मैंने बोला था टच योर नोज, तो आपने Yes. किया क्या? Nose touch. Touchless. Nose क्या किया आपने? सर मैंने सर टच head, किया. head. आपने वाली पकड़ लिए ना? Yes, sir. ठीक है ना? मैंने कहा क्या था आपसे? Nose touch. टच योर नोज. तो आपने मतलब मुझे सुना नहीं, आपने मुझे देखा, आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो किया, आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज को फॉलो किया, ना कि आपने वर्बल को फॉलो किया. सो वर्बल इज नॉट सो पावरफुल, नॉन वर्बल इज वेरी पावरफुल टूल. यूज इट इन योर लाइफ. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट आई एम सॉरी वी डोंट हैव टाइम्स. डॉक्टर साहब ने मुझे परमिट किया था कि जस्ट आप 5 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाद में अभी एक और लेक्चर है आपका. तो कुछ आपको अगर इसमें कुछ अच्छी चीज मिली हो तो एक चीज आप इसको, एक टर्म्स को यूज, इसमें चैट बॉक्स में एक वर्ड यूज करिए प्लीज. जस्ट आपको एक चीज जो नॉन वर्बल या वर्बल में आपको कोई टर्म आपको याद आ रहा हो तो उसको एज ए वोकैबुलरी बिल्डिंग यू हैव टू राइट इन योर चैट बॉक्स. कुड यू राइट प्लीज वन वर्ड? हैप्टिक्स ऑफ वॉट एवर इट इज, आई कॉन्टेक्ट, हैप्टिक्स, जो भी एक वर्ड जस्ट. यस प्लीज, कम ऑन. यस, एनी, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट वन वर्ड. यस राधिका, वेरी गुड. यस टच. यस टोन ऑफ वॉइस. और जो मैंने आपको एक रेशो बताया था आपको कम्युनिकेशन का, वो किसी को याद हो तो वो लिख दीजिए, कितना कितना परसेंट होता है नॉन वर्बल. यस स्माइलिंग. यस परसेंटेज 55. Very good. This is non-verbal body language. Eye contact 55. And what is words? How many percent? Yes, 38% tone. Very good. Yes. And what is 7%? Very good. Vocabulary is words are only 7%. Okay. Right. Feeling, touch. Very good. Geeta Patil. Okay. Radhika. Radha. Okay. Okay. Priyansi. Very good. Vaishnavi. Okay. Right. Okay. So did you enjoy the session? If you enjoy, Yes, sir. please write yes. Yes. If you enjoy, please write from simply by or enter. Okay, okay, right. So, okay, I think most of you enjoy. So I am really thankful to the management of your college and all the team, and especially Dr. Gupta for giving me this opportunity so that I communicated well with the students. And dear students, please, please never underestimate your value. There's a word glass ceiling. Break your glass ceiling and rise and ahead. You have very strong career ahead. So all the best for your bright future. You are from TNP. All the best from TNP. I am also from TNP actually. So that's all for the session. Thank you very much. Thank you, Gupta sir. Thank you all the students, Thank Radhika, you, and all sir. of. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Okay, okay. See you. Thank Bye. you, sir. Bye. Thank you, sir. See you. Bye. Thank you so Bye, much. all of you. Bye. Thank you, सारे sir. स्टूडेंट्स अभी रुकेंगे क्योंकि सेशन का एक भाग और होना है अभी. आप सर को चैट बॉक्स में थैंक्स दे सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच निखरा सर फॉर शेयरिंग Thanks to kindness. Radhika Malvi for the second session. Yes, sir. So should I leave, sir? Yes, sir. If you want, then you can be in the program. Otherwise, you may leave. और Yeah. present screen now आप stop कर दीजिए sir. Okay, sir. Thank you. I am just leaving because I have some other assignment. And once again, thank you, all of you. Okay, bye. See you. So secondly, I invite Mr. Raghu Pandey, sir. He is working on digital citizenship and internet maturity. His organization name is inmature.in. So I would like imatured.in. So I would like to invite Mr. Raghu Pandey, sir.
Thank you, Radhika. Thank you, Dr. Gupta, for inviting me to the session. इससे पहले मैं अपना डिस्कशन आज स्टार्ट करूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन से ईयर के और कौन से ब्रांचेस के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं. Some student can help me know about that. First year architecture. Architecture First department. year modern First year office management, sir. Architecture. Okay. Electronic. Technology. आप सभी यानी आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, great. So, hello all first year students. Good morning. So, Good morning, this session के Good morning, sir. very Good very morning, good morning, sir. Good morning, right. Good morning, sir. तो इस सेशन के पहले आपने एक बहुत ही बढ़िया निखरा जी का सेशन अटेंड किया, जिन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स आपको बताए. और आई एम श्योर, मैंने तो लेट ज्वाइन किया, मैं तो सिर्फ लास्ट के 10 मिनट ही उनके सुन पाया. आई एम श्योर उन्होंने शुरुआत में आपको ये इम्पोर्टेंस जरूर बताई हुई कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके करियर के लिए और आपकी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं हो तो आपको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं. किसी ने बताई है, मतलब उन्होंने बताई थी किसी को? Did Yes, sir. Mr. Yeah, so can anyone tell me to educate me कि अगर किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं तो वो कहाँ परेशानी में फंसेगा? क्विक समरी, 1 मिनट समरी. सर इंटरव्यू में. सॉरी अंजलि, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है. इंटरव्यू में सर. इंटरव्यू में क्या? सर इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगी अगर ठीक कम्युनिकेशन है. स्किल्स अच्छी होगी तो. ओके, और इंटरव्यू के अलावा? सर मेन थिंग पर्सनालिटी बिल्डअप के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है. आपका. और कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर्स पोस्चर हेल्प करते हैं आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए. ठीक एंड है. आपका वॉइस मॉड्यूलेशन. ओके, और उन्होंने हाँ, यस सर, माइकल जॉर्डन का उन्होंने एग्जांपल दिया था. तो मेन चीज यही थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सीड ही इस वजह से किया कि वो अपने आप को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाए. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. और क्या परेशानी हो सकती है किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो तो? एक इंटरव्यू का प्रॉब्लम होगा किसी, फिर शिवानी ने बताया कि पर्सनालिटी अप टू द मार्क नहीं होगी. और इज पूर्वी सेइंग समथिंग? उनका माइक ऑन हुआ अभी. सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. बहुत बढ़िया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट दैट. और कौन बोल रहा था? सर वो अपने आइडियाज किसी को अच्छे से बता नहीं पाएंगे अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो. वेरी गुड, वेरी गुड. सर पीपल से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल चारू, आपने सही बात कही. सर और क्या क्लैरिटी प्रॉब्लम? नहीं होगी बात में तो फिर. सर अपने आइडियाज को इजीली सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल, आइडियाज राधिका ने अभी बताया था आइडियाज के ऊपर, एंड आकांक्षा आल्सो सेड द सेम थिंग. बिल्कुल बिल्कुल सही. सर वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने कनेक्ट नहीं हो पाएंगे दूसरों के साथ. बिल्कुल सही. इज दैट द कंप्लीट क्लियर? ओपिनियन भी नहीं दे सकते सर, मतलब जी, clear. अगर आप बिल्कुल, अगर वो किसी ग्रुप में बैठे हैं तो वो अपनी बात रख नहीं पाएंगे. बिल्कुल सही. सर वो कम्युनिकेशन लाइफ में हर मोमेंट हर सिचुएशन में बहुत मस्त रहती है. बहुत ही बढ़िया बात कही आपने Hello? बोला कि हर मोमेंट हर सिचुएशन में ये चीज मस्ट रहती है. ओके, चूंकि मेरे पास आज सिर्फ 12 बजे तक का ही टाइम है. बहुत से बच्चों को ये सुन के बहुत खुशी हुई होगी कि अरे वाह, चलो एक चीज तो श्योर होगी, 12 बजे छूट जाएंगे. तो इसलिए मैं इस डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ाऊंगा. लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो तो क्या परेशानी हो सकती है. वेरी वेरी वैलिड. लाइफ के हर मोमेंट पे अगर आप अकेले कमरे में बैठ के कुछ मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो, और किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हर मोमेंट पे लाइफ की कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है. वो लिखित हो सकता है, वर्बल हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है,
all kinds of communication skills are required, very important skills. मैं आज आपको कुछ ज्ञान देने नहीं आया हूं, मैं आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने आया हूं, और अगर वो क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया तो मैं अपने प्रोग्राम को सक्सेस मानूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने इस कॉन्सेप्ट का नाम सुना है जिसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आंचल, आपके माइक से कुछ आवाजें आ रही हैं शायद, आप प्लीज म्यूट कीजिए। जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, सबने वर्क फ्रॉम होम का नाम सुना है। तो एक्चुअली क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन अब ये है जिसको आपको जिसके ऊपर अब आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है। अगर आपका भी करियर वर्क फ्रॉम होम चलने वाला है, मान लीजिए, तो कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हेल्प करेंगी? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड टेक फ्रॉम हियर एंड थिंक अबाउट इट। और उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको अपने किसी सीनियर से, किसी भैया या दीदी से पूछना पड़ेगा जो अभी अभी 1-2 साल पहले जिन्होंने जॉब ज्वाइन किया होगा बाहर की किसी कंपनी में, बाहर जाके किसी कंपनी में, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, कहीं पे, और अब पैंडेमिक के टाइम वो अब अपना काम घर पे आके कर रहे हैं, और कंपनी ने उनको बोला हुआ है कि अगले 6 महीने, 1 साल या जब भी है, आप घर से काम करने वाले हैं। और टीसीएस जैसी कंपनीज ने तो ये बोल ही दिया है कि अब 75% एम्प्लॉइज हमारे हमेशा फॉर एवर घर से ही काम करेंगे। तो और दूसरी डेलॉइट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो आपकी ड्रीम कंपनीज हो सकती हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि मेजॉरिटी जो है वो वर्क फ्रॉम होम होगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ एक मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी करी, जैसा आपने अपनी पर्सनालिटी में उसको लेके आए, शिवानी ने जैसा कहा था कि पर्सनालिटी अप टू द मार्क हो जाती है उससे, और अपनी पर्सनालिटी आपने इंप्रूव की कि आपकी वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी वोकैबुलरी सब बढ़िया, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका करियर वर्क फ्रॉम होम चलने वाला है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बॉसेस को दिखेंगी कैसे? आप कैसे उनको इम्प्रेस कर रहे होगे? आपके कलीग्स भी आपके साथ नहीं है, जो आपकी टीम है, आप भोपाल में बैठे हो, आपकी टीम वाला इंदौर में एक होगा, एक उज्जैन में होगा, एक लखनऊ में बैठा होगा, एक जयपुर में बैठा होगा, ऐसी आपकी टीम है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अब वर्क फ्रॉम होम एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में कैसे काम करेंगी? और अगर ये वाली कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, तो कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो एक वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए? दूसरों से आप सबने जो बात बोली ना, मैं उसी को आपको रिपीट करूंगा। कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो एक वर्क फ्रॉम होम आइदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और एंटरप्रेन्योर और कोई भी जो घर से बैठ के पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है, उसको चाहिए, जिससे वो अपने ओपिनियन भी अच्छे से रख सके, अपनी पर्सनालिटी से भी इंप्रेस कर सके, दूसरों से कनेक्ट भी हो सके, और इंटरव्यू की बात एक फ्रेंड ने कही थी, मैं उनका नाम भूल गया। इंटरव्यू अच्छे से घर पे बैठे ही वो क्रैक कर सके, और अपने आइडियाज और ओपिनियंस, आप सभी ने बताया आइडियाज ओपिनियंस शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो घर से बैठ के कर सके। तो कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स है जो ये हो पाएगा? या सर, मे बी वर्बल। जी, फिर से बोलिए, मैं आपकी बात पूरी नहीं सुन पाया। मे बी व्हाट? मैं पूरी बात नहीं सुन पाया, किसी ने मे बी Sir, करके she कहा। said maybe verbal. मे बी वर्बल, ओके। यानी कि जैसे मैं अभी अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करके आपको कुछ बता रहा हूं, लेकिन ये इस तरह के जो ऑनलाइन मीटिंग्स हैं ये तो बहुत कम होती हैं, ये तो वीकली होती हैं। नॉर्मली जो काम होता है वो जी written communication, because emails and मतलब डेली बेस पे जो घर से काम कर रहा है उनका यही मेन काम रहता है कि वो फीडबैक देते हैं आज कितना काम गुड। उन्होंने करा। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने शिवानी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अब मैं आप सभी को इसी सवाल को और डीप में सोचने के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा
कि ठीक है, अगर वर्बल तो वर्बल स्किल्स कहाँ दिख रही है, रिटर्न तो वो कौन कौन सी रिटर्न है, आप क्या क्या लिख रहे हो? सर एक ईमेल लिख रहे हो, व्हाट्सएप लिख रहे हो, एसएमएस लिख रहे हो? हाँ जी, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन? जी मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता हूँ आंचल। हाँ सर। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका जो करियर है, आपका जो रोजगार आप करने वाले हो, वो अगर वर्क फ्रॉम होम घर बैठे करें जैसा रहा, जैसा कि बहुत सारे लोगों को भी करना पड़ रहा है, वो कोई भी काम कर रहे हैं वो घर बैठ के कर रहे हैं, तो ऐसे वातावरण में आपकी कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी? क्या मेरा जो सवाल है वो आपको समझ में आया आंचल? हाँ सर। जी, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नो सर। जी, और ये सवाल क्यों जरूरी है मैं आपको फिर से बता देता हूं, क्योंकि शायद आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करो या एज एन एंटरप्रेन्योर जॉब करो, कुछ भी करो, शायद आप अपने घर से या एक बहुत छोटे से ऑफिस से बैठ के काम कर रहे होगे, भले ही कितनी भी बड़ी टीम में आप काम करो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स इस एनवायरनमेंट में काम आती हैं। सो वेदर इट इज ईमेल राइटिंग और व्हाट्सएप और एसएमएस और शायद आपने नाम भी ना सुना हो, डिस्कशन फोरम्स का, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशंस, या ब्लॉग राइटिंग या शेयरिंग ऑफ कंटेंट, कभी सोचा है इस डायरेक्शन में? अब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो quora.com को जानते हैं? Yes, sir. क्या होता है कोरा पे? Sir, any questions? सर कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं उसके आंसर्स मिलते हैं एंड अच्छा, आल्सो सर एंटरप्रेन्योर्स के भी थोड़ा बहुत सर। ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको, जो मुझे समझा सकता है ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं? कोई मुझे बता सकता है एक अच्छा ईमेल लिखने का क्या एटिकेट होता है? So Please. bold capital letters use Capital नहीं करना letters में चाहिए use पूरा। यस सर। जी, और क्या, चलिए ऑल कैप्स में यूज नहीं करना चाहिए। और एटिकेट्स में तो सर प्रॉपरली फॉर्म्ड होना चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट में आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो कवर हो जाना चाहिए, मेन पॉइंट्स। वोकैबुलरी शुड बी करेक्ट, ग्रामर शुड बी सब करेक्ट। प्रोफेशनल सैल्यूटेशन होना चाहिए, लास्ट में सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर ईमेल में तो सिग्नेचर वाला आई डोंट थिंक। ईमेल में सिग्नेचर और भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सिग्नेचर क्या होता है? सो सिग्नेचर मतलब इन द सेंस आपका जो नाम या फिर जो भी आप जी, पूर्वी, ओके, आई थिंक पूर्वी's नेटवर्क हैज सम प्रॉब्लम। कोई मुझे और बता सकता है ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है? आई थिंक सर द लोगो और जी सील ऑफ द कंपनी ऐसा समथिंग। नहीं, आपने अगर ईमेल लिखा शिवानी, तो आपका सिग्नेचर उसमें हो सकता है क्या? नो सर, या तो स्कैन वो अलग रहता है, जैसे स्कैन करके डाल देते हैं। अच्छा, सर सिग्नेचर वो वाला सिग्नेचर नहीं बोल रही हूँ जो साइन वाला होता है, नेम मैं मेंशन वो वाला सिग्नेचर बोल रही हूँ जो आपका मतलब क्या वर्ड है, जस्ट जो सर थैंक्स एंड रिगार्ड्स रिगार्ड्स के बाद मेंशन लिखा होता है। जाता है कि आपका नाम यस एंड सर। बेसिक वन लाइन आपका डेजिग्नेशन एंड मे बी फोन नंबर, ये सिग्नेचर होता है।
सो यस Yes. शिवानी, पूर्वी इज करेक्ट हियर कि यहाँ पे सिग्नेचर का मतलब आपका वो जो हस्ताक्षर की बात नहीं होती है, बस ईमेल के बाद जो रिगार्ड्स के बाद लिखा जाता है वो. सो द पॉइंट इज कि मैं अभी एक चीज देख सकता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके लिए बहुत नए हैं, और आप इस चीज की तैयारी करने के आने वाला जो समय है वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स का समय है. क्या आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुन ली? Yes, sir. हाँ सर. आने वाला समय किस चीज का समय है? ऑनलाइन Online कम्युनिकेशन communication skill का. बिल्कुल. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स का समय है. आने वाला फिर- समय हाँ. सिर्फ और सिर्फ Okay. ऑनलाइन Online कम्युनिकेशन communication का समय है। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल एक पोल की तरह गाड़ लीजिए, फ्लैग पोल की तरह, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस चीज की प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे. आप लोग कितने ईमेल रोज लिखते हैं? आप लोग फोरम डिस्कशंस के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप फोरम डिस्कशन करते हैं या फिर सिर्फ व्हाट्सएप चैट तक ही आपने आपको सीमित रखा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि एसएमएस जैसी चीज लिखने का सही तरीका क्या होता है? क्या आपको मालूम है फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल अलग कैसे होता है? अगर फेसबुक पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या नेटिकेट्स का ख्याल रखना चाहिए? वो आपके फ्रेंड की फोटो है या आपके बॉस की फोटो है, दोनों पे कमेंट करने में क्या अंतर होना चाहिए? इन जनरल अगर आप अपना गुस्सा ऑनलाइन शो करना चाहते हैं तो क्या कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं? अगर अपने आइडियाज आपको दुनिया के सामने रखने हैं, ओपिनियन दुनिया के सामने रखने हैं, तो कौन सा टूल है? क्या आप में से किसी ने कभी ब्लॉग लिखा है? तो मैं आज आपको बिल्कुल भी ज्ञान देने नहीं आया हूँ. मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने आया हूँ कि आने वाला जो समय है और उस समय में जो कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आप उनसे कितना दूर हैं अभी. तो आप जब भी इस कॉलेज के बाद दूसरे कॉलेज से पास होके निकलेंगे और जिस समय आप करियर में अपने लैंड करेंगे, और जॉब हो सकता है या एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, उस टाइम जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होंगी वो मैंने अभी आपको उस चीज का एहसास दिला दिया है. अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचता है बाद में जाके कि यार हमको तो ये किसी ने बताया ही नहीं था. और ये सारी प्रैक्टिस वाली बातें, राइट? ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स. सो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप कुछ ऐसा करेंगे कि ये स्किल्स आप लोग प्रैक्टिस कर पाए. मुझे नहीं पता और मैं आपको बता भी नहीं सकता अभी कि आप ऐसा क्या करें, बट शायद अपने आप में ही कुछ ऐसा आप अपना ग्रुप्स बनाएंगे. मे बी यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द ईमेल्स दैट यू सेंड टू योर टीचर्स कि वो कितने अच्छे हैं कि नहीं. या फिर आप में से कोई ब्लॉग लिखना चालू करेगा, आप में से कोई ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स को डिस्कवर करेगा. आप लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता. और वैसे ये भी होता है कि मैं ये जो बातें पिछले 10 साल से ये बातें मैं स्टूडेंट्स के साथ करता आ रहा हूँ. इस चीज के ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी है, अब एक ऑनलाइन कोर्स भी क्रिएट किया है इंटरनेट मैच्योरिटी के ऊपर. और 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे जो करिकुलम हैं स्कूल के, कॉलेज के, उन करिकुलम्स में इनकी बात नहीं होती है. तो उन कभी कोई एग्जाम भी इस चीज का नहीं होगा, तो आप लोग तो एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो उनको उसमें कोई फायदा नजर नहीं आता है. बट इमेजिन कीजिए वो बच्चे जिन्होंने बस पैंडेमिक में अभी जॉब जिनकी हाथ से चली गई, जिन्हें निकाल दिया गया. बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉलेज के बाद, इंजीनियरिंग के बाद या एमबीए के बाद जॉब ज्वाइन करी, और चूंकि उनका परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी गुड, इतने इफेक्टिव नहीं थे, तो जैसे ही पैंडेमिक आया कंपनीज ने छटनी कर दी. कमजोर कड़ियों को पहले निकाल के फेंक दिया जाता है. ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे कमजोर कड़ी जिनको निकाल के फेंक दिया गया था, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं आज से 7-8 साल 6 साल पहले मिलके यही बातें करता था कि आपको गुड ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, बिकॉज आने वाला समय ऐसा होगा कि आप अपनी टीम के साथ फिजिकली मिलके बात नहीं कर रहे होगे,
या हर बार एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात नहीं कर रहे होगे। आपको अच्छे ईमेल्स, ब्लॉग्स, डिस्कशन फोरम्स, ये सारी चीजों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिनको वो प्रैक्टिस जिन्होंने की वो आज अच्छे वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज हैं, दे आर डूइंग गुड। जिनकी वो प्रैक्टिस नहीं है, नेचुरली वो या तो खुद ही इस सिस्टम से कट गए या सिस्टम कंपनीज के सिस्टम ने उनको कट कर दिया। आपके लिए ये तय बात है कि you will be working from home employees. So, and to add to that, the college curriculum does not have anything to tell you कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपका इसको कोई टेस्ट भी नहीं होगा। तो आप लोग स्वयं डिसाइड करें। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं इस चीज में तो हम आगे बात जरूर कर सकते हैं बाद में। मेरा प्रोफेशन ही ये है, मैं बच्चों को इंटरनेट मैच्योरिटी के स्किल सिखाता हूँ, but only to the ones who are actually motivated to do that. So the question is again for you to think, and now I will be ending my talk कि work from home environment में कौन सी communication skills आपके काम आएंगी, और इस चीज को आपको सोचना है। अपने किसी भैया दीदी से बात करनी है जिनको अभी अभी घर पे बैठ के काम करने का असाइनमेंट मिला है। ऑलराइट, साउंड्स अ गुड प्रोजेक्ट टू डू। जी शिवानी बोलिए। Sir, I want to learn these skills from you. एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट। तो हम आप और अगर कोई और भी आपके फ्रेंड्स हैं तो हम Sir, me जरूर इस too. चर्चा, Sir, me too. मोहिनी एंड संचिता एंड शिवानी Sir, I also. एंड राधा Yes, एंड Yes. बहुत बढ़िया। Yes, sir. ओके, गुड गुड गुड। अब चूंकि इतने सारे लोग आ गए तो अब मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम 10-12 लोग ऐसे हैं जो इस चीज को आगे सीखना चाहते हैं सिंसियरली। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गुप्ता सर से कि वो मेरा और आप 10-12-15 जितने भी लोग आना चाहते हैं उनका एक इंटरेक्शन इंश्योर करवाएं। तो ये हम बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता के उसके गाइडेंस के अंदर ही कर पाएंगे। सो ग्रेट, आई वुड लव टू वर्क विथ यू गाइस, बहुत मजा आएगा। Yes, sir. Me बट too. असाइनमेंट सबके लिए है। अगर कोई अभी नहीं मुझसे डायरेक्टली सीखना चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन जो भी अभी मेरी बात सुन रहा है बस इस क्वेश्चन को दिमाग में रख के जाइए। मेरा आज का काम तो पूरा हो जाएगा, बाकी ये 10-12 बच्चों के साथ हमारा आगे का काम आगे बढ़ जाएगा। वी विल सी। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. एज प्रॉमिस्ड मैं डॉट 12 बजे अपना टॉक खत्म कर रहा हूँ, और ये जान के आपको बहुत ही खुशी हो रही होगी। सो Not really, sir. ऑल राइट, मुझे तो होती है यार, जैसे ही टॉक वो खत्म होता है तो हाँ जरा चैन की सांस आती है। तो जब मैं ऑडियंस रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे मजा नहीं आ रहा आपसे बात करने में। तो ऑल राइट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं अपना ईमेल आईडी अभी चैट बॉक्स में डालूंगा, आप उसमें मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन भेज सकते हैं। अदरवाइज विथ डॉक्टर विनोद गुप्ता, उनके गाइडेंस में हम जो भी बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया है हम उनके साथ कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगे। यस Okay, sir. राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं मैं अभी Sir. आंसर करूं? किसी की कोई इमीडिएट क्वेरी है जो वो चाहता है कि मैं अभी आंसर करूं? प्लीज गो अहेड। हम 1-2 मिनट क्वेश्चंस के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। मैं जब तक अपना ईमेल आईडी पुट अप कर देता हूं चैट बॉक्स में, आप सोच लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। Sir, but basically written communication ही होगा ना, अगर देखा जाए तो इसका आंसर। जी शिवानी, आपकी बात सही है। रिटर्न कम्युनिकेशन तो बिल्कुल सही है कि वही होगा, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन का फॉर्म जो रूप है वो बहुत ज्यादा बदल जाता है जब आप एक फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं या इनफॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं या सिर्फ एक एसएमएस या व्हाट्सएप भेज रहे हैं या किसी के ब्लॉग पे कमेंट कर रहे हैं या अपना ब्लॉग लिख रहे हैं। तो
आपके रिटर्न कम्युनिकेशन के बाहर निकलने के रास्ते जो है इंटरनेट पे इतने सारे हैं कि हर रास्ते पे अलग तरीके का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप सभी, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि आप सभी ने मुझे ईमेल लिखने के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन उसका सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने छोड़ दिया, राइट अ प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन। अब हाँ सर ये ईमेल लिखने की खास बात है। अब ये वाली बात ब्लॉगिंग में या एसएमएस में नहीं आएगी। यस सर। जी अनीता मैम, गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू। अभी मैंने आपको देखा जी। तो शिवानी, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा कि बिल्कुल सही, रिटर्न कम्युनिकेशन ही हो रहा है, Yes, लेकिन sir. उसके रूप बहुत बदल जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टूल यू आर यूजिंग, है ना। और Yes, हर sir. चीज में, हर चीज की बारीकी अगर आपको नहीं समझ में आएगी, तो जैसे किसी एक फ्रेंड ने मुझे भी बोला भी था इस डिस्कशन में कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो जाती है। अब जैसे मैं भी आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ और मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं तुरंत करेक्ट कर लूंगा और आपको सही चीजें समझ में आएगी और मेरे एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं। अगर मैं सार्कास्टिकली कुछ बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ अरे आज तो बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ भैया, लेकिन आपको मालूम है कि नहीं बेकार सेशन था, तो सार्काज्म भी समझ जाओगे आप। रिटर्न कम्युनिकेशन में ह्यूमरस टोन कई बार समझ में नहीं आती, सार्काज्म समझ में नहीं आता, कोई पोलाइट मन से है लेकिन लिखते टाइम उसके वर्ड्स ऐसे हैं कि लग रहा है कि लट पटक रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में। वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट में सिर्फ रिटर्न कम्युनिकेशन ही चलता है। तो अगर आपका ईमेल लगातार ऐसा जा रहा है कि आप लगता है कि यार दिस गर्ल इज नॉट अ पोलाइट गर्ल, अब आपके बॉस को ऐसे आपसे 100 ईमेल मिल गए, लेकिन उस बार हर बार उसको लगता है कि यार इन्हें बड़ा रूखे तरीके से बात करती है, इसको मैनर्स नहीं है। आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा उस बॉस से मिल के उसके सामने बैठ के एक बढ़िया सा पोलाइट वे में कुछ वर्बल कम्युनिकेशन देने का। इसीलिए ये इतना क्रिटिकल हो जाता है कि आपको हर प्लेटफॉर्म के रिटर्न कम्युनिकेशन का बारीकियां पता हो, नुएंसेस पता हो। Yes, sir. ठीक है शिवानी, अब आपको समझ में आया जी। जो मैं डिटेल बताना चाह रहा था? जी सर। Right friends, so I have shared my email ID in the chat. आप अगर आपकी कोई भी queries हैं, please do shoot those and we will plan something with sir जिन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है इस चीज को डीप में सीखने के लिए। We will plan something and we will communicate with you. So should we say goodbye now, sir? What do you say, Gupta sir? Yes sir, yes sir. ओके, गुड बाय फ्रेंड्स। प्लीज मेरा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में रहे, उसके ऊपर आप रिसर्च करें और जितने लोगों से इसके ऊपर बात कर सकते हैं प्लीज करें। ऑलराइट, Thank you, Yes, sir. Thank you. thank you, sir. हैव अ गुड डे Thank you, sir. एवरीवन, हैव अ गुड डे, Thank you, sir. बाय बाय, मजा आया। Thank you Raghu sir, thank you very Thank much. you, sir. थैंक यू विनोद गुप्ता सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.